Hello children, today we are going to start with chapter 4, that is industries. So in this chapter we will study about different industries. So what is industry? First of all, I will tell you about what is industry, classification of industries, an industrial system, industrial reasons and distribution of major industries. So what is industries? Often we come across like film industries, communication industry, textile industry, but do you know what is industry? What is industry? It's an economic activity. एक economic activities है जिसमें buying and selling both are involved. चाहे वो goods की हो, चाहे वो services की हो, right? या वो collection of raw material की हो, mineral की हो, changing उनको finished product, सब included है. What is manufacturing involves? Manufacturing involves conversion of raw material into final products. जब हम क्या करते हैं, raw material को किस में convert करते हैं? Final product में. Right children? Now final product have more value than raw material. जो final product होता है ना उसकी ज़्यादा value होती है as compared to raw material. These products makes our life easier. So industrial revolution started in England in the late 18th century. From there it spread to rest of Europe, North America and later Japan. What it involves? It involves large scale production using modern tools. इसमें हम modern tools और machines का use करते हैं जिसने world को change करा है. And soon after independence, India also developed in industries at a faster pace. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. अब मैं क्या करूंगी, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करूंगी. कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ मीडियम, कुछ लार्ज स्केल होती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, अगर हम साइज की बात करें तो हमने साइज के हिसाब से कॉटेज जिसमें फैमिली मेंबर्स ही लगे होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री. ठीक है, स्मॉल स्केल में आपको कम मशीन चाहिए होती है, बट इन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वी नीड lot amount of machines. Now on the basis of ownership we have public sector, private sector, joint sector or cooperative. On the basis of raw material, we have forest based, mineral based, marine based and agro based industry, right? So on the basis of size, जो size of the industry है वो किस पे depend करता है? It's depend not only upon the number of people but also on as money invested and the volume of production of goods and services with how profitable it is. So on the basis of size, हमने industries को 3 different parts में divide करा है. So let's study it one by one. First is cottage industry. ये manufacturing activities यहाँ पे होती हैं. Most of the people जो हैं वो manufacturing करते हैं, which is done at all the small shops at homes to make things like brassware, leather goods, pottery, handloom product. Most of these goods are manufactured by hand, but this type of industry ये करती है आपका जो विलेज है ना उसमें ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, राइट? दे आर ट्रेडिशनल्स. ये इंडस्ट्रीज कैसे होती है? ट्रेडिशनल होती है. वहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें, यहाँ पे इंडस्ट्रीज क्या करती है? वर्कर्स को एम्प्लॉय करती है और पावर मशीनरी का यूज करती है, लेबर फॉर द प्रोडक्शन. और ये पार्ट ऑफ कॉटेज थोड़ा दूर अपार्ट फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती है? सिचुएटेड होती हैं, लाइक साइकिल, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पेपर, फर्नीचर. दीज ऑल कम्स अंडर small scale industry. The industries helps in generating employment and in training the youth. और youth को क्या देती है? ट्रेनिंग देती है, right? The government has opened many industries like ITI, that is Institute Training Institutes, Industrial Training Institute, जो आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं, राइट? और यहाँ पे जो मार्केट होता है ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो यूजुअली क्या होता है? आपका लोकल एरियाज होते हैं. नेक्स्ट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री. इसमें बहुत सारे लोग चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है. 1 करोड़ और मोर की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. और यहाँ पे जो प्रोडक्शन है गुड्स का वो एक ग्रेटर क्वांटिटी में होता है, बहुत ज़्यादा नंबर में होता है. यहाँ पे गुड सिस्टम चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स एंड द बिगर मार्केट टू सेल देम. वी हैव टेक्सटाइल, सीमेंट, केमिकल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. Now on the basis of ownership, we have public sector industries, right, which are owned and operated by government. इसको कौन own करता है और कौन operate करता है? Government. We have heavy industries like iron, steel, aircraft and oil. इनको सबको कौन own करता है? हमारी government. That is Hindustan Aeronautics Limited, HAL, right? Your SAIL, Steel Authority of India Limited. Then we have private sector industries. इसमें क्या होता है? जो आपके रिसोर्सफुल इंडिविजुअल है, ग्रुप ऑफ पीपल है विद देयर ओन फंड्स, दे देमसेल्व्स हैव टेक्निकल नॉलेज फॉर और हायर पीपल.
इनके पास अपने आप टेक्निकल नॉलेज होती है, लोगों को हायर करते हैं। लाइक वी हैव बजाज ऑटो लिमिटेड एंड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये प्राइवेट सेक्टर है। गवर्नमेंट ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज थ्रू टैक्सेस। और जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं कंपनीज के, देयर आर टू टाइप्स, एक तो प्राइवेट लिमिटेड होते हैं और एक पब्लिक लिमिटेड होता है। प्राइवेट लिमिटेड में आपकी जो कंपनी है वो स्मॉल ग्रुप वाले लोगों के पास होगी, वहीं पब्लिक में एक लार्ज ग्रुप वाले लोगों के पास होगी। नेक्स्ट इज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी, दोनों करते हैं, राइट। दे जॉइन हैंड्स टू एस्टैब्लिश न्यू एंटरप्राइज। दी हैव मारुति सुजुकी लिमिटेड, ये जॉइंट वेंचर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और जो सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन है जापान, दोनों इसमें क्या है, वर्क करते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर्स में क्या होता है, जो सब प्रोडक्ट प्रोड्यूसर होता है और सप्लायर होता है रॉ मटेरियल का, एज वेल एज वर्कर एंड ऑपरेट दीज इंडस्ट्रीज, जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी। Next is on the basis of raw material, we have forest based industries, like we get raw material from forest, जिससे आप क्या बना सकते हो, फर्नीचर, राइट, रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट, ठीक है। मिनरल बेस्ड, जिससे आपको मिनरल की नीड पड़ती है, मिनरल ओर्स क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, राइट। ये आपको एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल किसको देता है, इंडस्ट्रीज को, लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज। देन वी हैव मैराइन बेस्ड, जिसमें आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, सी से मिलता है और ओशन से मिलता है। Industries which process seafood or other product using them are raw material, a part of this type of industry. वो इसी industries का part होती है, right? Next is agro based industry. In this type of industry, plant based raw material are processed to make final product for use. Like we have sugar, cotton, oil and jute industries. Now location of the industry. ये जो आपकी इंडस्ट्री है वो कहाँ पे लोकेटेड होनी चाहिए। There are many factors that are assessed in great details before starting an industry, like availability of raw metal. Raw metal की availability होनी चाहिए, presence of skilled and unskilled labor जो suitable हो for the administrative staff, and uninterrupted power supply, तो supply power supply interrupted ना हो, easy access to market हो, good connectivity हो roads की, railways की, seaport की, right. Next is availability of capital investment हो, राइट, सब्सिडी ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी पे, फेवरेबल क्लाइमेट, ड्रेनेज सिस्टम और प्रोविजन ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट हो, ठीक है, चीप एंड सुटेबल लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज। नाउ इंडस्ट्रियल सिस्टम, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये तीनों क्या है, मेन पार्ट है आपके इंडस्ट्रियल के, ठीक है। जो रॉ मटेरियल हो गया, कॉस्ट ऑफ लैंड हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये सब हमारा इनपुट हो गया। जितनी ये भी एक्टिविटीज जिसमें हम रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो आपका प्रोसेस हो गया। और जो भी फिनिश प्रोडक्ट आपको प्रोसेसिंग के बाद मिल रहा है एंड हाउ वेल इट डज इन द मार्केट, वो उसका आउटपुट हो गया, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज द इनपुट कैन बी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। प्रोसेस में आपका गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग हो गया, एंड द आउटपुट इज डिफरेंट। आप किस तरीके का क्लोथ बाय कर रहे हो, राइट, जो भी मेड है आप उसे वियर कर रहे हो, वो आउटपुट हो गया। नाउ लेट्स सी अबाउट सम इंडस्ट्रियल रीजन, जैसे आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, जिसमें आपका यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्वीडन हो गया। ईस्टर्न यूरोप, रशियन, यूक्रेन। ईस्टर्न एशिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, मलेशिया एंड ताइवान। If we talk about major industrial region in India, we have Mumbai Pune region, Gujarat region, Visakhapatnam Gutnoor belt, Kollam Thiruvananthapuram industrial cluster, Ahmedabad Baroda region, Bengaluru Tamil Nadu belt, Chota Nagpur industrial belt, Delhi Gurgaon Meerut region. Right, ये क्या है, कुछ major industrial region है that we see over here. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री। हमने क्या करा, जो अपना अलग अलग इंडस्ट्रीज है, जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा। जैसे पहली आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये बेसिक की इंडस्ट्री है। कैसी है, बेसिक की इंडस्ट्री है। ये क्या प्रोड्यूस करती है, स्टील, विच इज अ रॉ मटेरियल फ्रॉम मेनी अदर इंडस्ट्री। लाइक स्टील का हम यूज करते हैं टूल मेकिंग, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल में। और अगर हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें, बैकबोन है आपकी सारी इंडस्ट्रीज की, राइट। लाइक वी हैव रॉ मटेरियल नीडेड फॉर दिस इंडस्ट्रीज आर आयरन, और कोल, मैग्नीज एंड लाइमस्टोन। स्टील कैन बी इजली शेप, आप स्टील को इजली शेप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और उसको वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इट रिमेन्स टफनेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर आर एडेड टू द स्टील। और ये जो एलॉयज है, व्हाट दे गिव इट्स
unusual hardness, toughness, and ability to resist rust. Next is steel is used in manufacturing of ships, trains, trucks, needlesmith. Steel and machinery is used in drilling of oil wells and it is essential for extraction of many minerals. Like pipe made up of steel is used to transport oil. Even building have steel in their framework for a strong structure. Location of iron and steel industry change through a year and in 1800 the location of iron and steel industries वो किस पे बेस्ड होती थी? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मेटेरियल, क्या रॉ मेटेरियल अवेलेबल है, क्या पावर सप्लाई और क्या रनिंग वाटर है. लेटर व्हाट हैपन नियर कोलफील्ड्स, कैनाल्स और रेलवेज बिकम एन आइडियल लोकेशन. ये आइडियल लोकेशन बन गए एंड आफ्टर 1950 व्हेन इंपोर्टिंग आयरन और बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस, आयरन इन स्टील इंडस्ट्रीज बिगिन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स. राइट, यहाँ पे कुछ केस स्टडी दी आपको इंडस्ट्रियल डिजास्टर की. एंड व्हाट इट इज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड डिजास्टर ऑफ्टन रिजल्ट्स फ्रॉम टेक्निकल फेलियर or carelessness handling, right? One of the most catastrophic industry disaster in history took place in Bhopal in December 3, 1984 around 12:30. जो ये टेक्नोलॉजिकल इंसिडेंट है, इसमें क्या होता, मिथाइल और मिथाइल आइसोसाइनेट में एमआई से जो गैस थी वो रिलीज हुई थी एंड हाइड्रोजन कैनाइड एंड अदर गैसेस फ्रॉम द ना वर्ल्ड प्रोड्यूसर. चाइना जो है वो आपका बिगेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का. उसके बाद आता है इंडिया, राइट, जापान, यूएसए, रशिया, जर्मनी, साउथ कोरिया, मैक्सिको, यूके, ये कुछ अदर प्रोड्यूसर हैं. देन वी हैव यूएसए, पिट्सबर्ग, ये इंपॉर्टेंट स्टील सिटी है. देन रॉ मटेरियल सच एज कोल इज अवेलेबल locally, while iron ore come from iron mines in Minnesota between mines and Pittsburgh is the world best routes for the cheap shipping of ore. अगर हम फेमस ग्रेट लेक्स की बात करें, वाटरवेज ओर्स की बात करें, इट इज कैरिड फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द पिट्सबर्ग एरिया थ्रू ट्रेन्स. इट रिसीव वाटर सप्लाई फ्रॉम ओहियो, right, Monongahela, Allegheny River. We have other factories that are also located in Pittsburgh area, like we use steel as a raw material to manufacture many different products, right? जैसे आपका रेल रोड इक्विपमेंट हो गया, हैवी मशीनरी हो गई, रेल्स हो गई. नाउ इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज, दैट इज दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो, भद्रावती, वी हैव बर्नपुर, जमशेदपुर, रोलेकेला, सलेम, विजयनगर, विशाखापट्टनम, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो कहाँ लोकेटेड है, टिस्को में. ये सब क्या है, ये ओनली आयरन स्टील प्लांट है in India before 1940. Our government has set up several iron steel plants after independence. So in 1907, TISCO was started at Sakchi, whose name was later changed to Jamshedpur, which was chosen the location for getting up the steel plant at various place. That is reason. Kalimati station. कलीमती स्टेशन जो आपका बंगाल नागपुर रेलवे लाइन में है, जो 30 किलोमीटर अवे है, राइट. देन वी हैव देयर आर आयरन ओर, कोल एंड मैग्नीज डिपॉजिट नियर बाय. कोलकाता आपको लार्ज मार्केट प्रोवाइड करती है नियर द लोकेशन. एंड वी हैव खरकाई एंड सुबर्णरेखा रिवर. व्हाट इट इज, इट इंश्योर्स सफिशिएंट वाटर सप्लाई. टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झांसी कोलफील्ड, आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़. In India, the road of industrial development has paved the development of iron and steel industry. जितने भी सेक्टर इंडस्ट्री के वो किस पे डिपेंड है, ऑन दिस इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ टेक्सटाइल बिगेन एज अ कॉटेज इंडस्ट्री बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री नाउ. ये आपको थाउजेंड्स ऑफ वर्कर एम्प्लॉय करती है, जो कहाँ लोकेटेड है, नियर द सी पोर्ट. The textile industry uses fiber as its raw material. Fiber can be natural भी हो सकता है, ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं. वूल, सिल्क, कॉटन, लेनिन एंड जूट, ये क्या है आपके, ये सारे आपके नेचुरल फाइबर हैं. वहीं अगर हम बात करें नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, रेयन, ये सब क्या है, मैन मेड है. द कॉटेज टेक्सटाइल जो है आपकी, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है वर्ल्ड की. बिफोर द अराइवल ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कॉटन क्लोथ्स को हम बनाते थे यूजिंग हैंड स्पिनिंग. हैंड स्पिनिंग करते हुए विद चरखा. फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, पावर लूम्स का हमने यूज करा, विच वॉज इन्वेंटेड इन 18th सेंचुरी. सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था, लेटर इन अदर पार्ट. एट प्रेजेंट इंडिया, जापान, चाइना एंड यूएसए, दे आर द important producer of cotton textile. Before British rule in India, we have Muslin of Dhaka,
चिन्स ऑफ मसूलीपट्टनम एंड कैलकॉस ऑफ कोलकाता, गोल्ड व्रॉट कॉटन ऑफ बुरहानपुर। सूरत और वडोदरा की हम बात करें, इनको हम वर्ल्ड वाइड जानते हैं फॉर देयर क्वालिटी एंड डिजाइन एंड द एक्सपेंसेस एंड द अमाउंट ऑफ टाइम कंज्यूम लेड टू द फॉल ऑफ ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। राइट, ये जो इंडस्ट्रीज है दे कुड नॉट compete against the textile mills टू ऑफ द वेस्ट which produce good quality textile at cheaper rate using machine। सबसे पहला सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल है वो आपका कहाँ स्टैब्लिश हुआ था? मुंबई में इन 1854। The warm and the moist climate, a port for importing machinery and availability of raw material and skilled labor, what it's resulted in rapid expansion of the industries in the region. We have Chennai, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, कोयम्बटूर, कानपुर, पुडुचेरी, पनपानीपुर। ये सारी क्या है आपकी? ये आपकी इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर है। देन वी हैव वर्ल्ड प्रोड्यूसर। रॉ वूल कम्स फ्रॉम, रॉ वूल कहाँ से आती है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका। चाइना, जापान एंड इंडिया, साउथ कोरिया ये सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। और जो इंडिया और बांग्लादेश है वो क्या प्रोड्यूस करता है? जूट। इंडिया, चाइना, यूएस एंड जापान ये मेजर प्रोड्यूसर भी हैं आपके कॉटन के। Osaka is an important center of Japan. Plains around Osaka ensured easy availability of land for the growth of cotton mills. Warm, humid climate, well suited for spinning and weaving. Mills get sufficient supply. Labor is easily available. Import of raw cotton or export of textile become an important. Now textile industry जो ओसाका पे है वो रॉ मटेरियल के लिए क्या होती है? डिपेंड है। Right, like cotton is imported from Egypt, India, China and USA. Finished product is mostly exported. It's good quality, जिसकी good quality है, low price है, उसके क्या है? ज़्यादा market में value है। Now Indian industries. Cotton textile are found all over the country, but Mumbai, Maharashtra, Gujarat are well-known centers. First textile mill जो थी वो कहाँ established हुई थी? 1859 में अहमदाबाद, गुजरात में। It becomes second largest textile city of India after Mumbai. कुछ factors हैं जैसे it is suited very close to cotton growing areas which ensures easy availability of raw material. यहाँ पे जो climate है वो ideal है for spinning and weaving. Flat terrain है अहमदाबाद की। Gujarat and Maharashtra are densely populated, right? Next is they have well developed road and railway network. Presence of nearby Mumbai port facilities. Then we have chemical industries. What it's produce? Chemical, which is needed in metallurgy, agriculture and manufacturing of medicines, textile, glass, leather and sugar. Then they are also needed for manufacturing of detergent, pesticide, fertilizers, explosive and synthetic fiber. और आपका जो वर्ल्ड प्रोड्यूसर है वो यूएसए, जर्मनी, यूके, रशिया, जापान, चाइना एंड इंडिया है। राइट, दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द केमिकल इंडस्ट्रीज। देन वी हैव इंडियन केमिकल इंडस्ट्रीज जो आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लोकेटेड है, जैसे आपके दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज यूज स्टील एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, टेक्सटाइल मशीन, कंप्यूटर, ट्रांसफॉर्मर्स, टर्बाइन्स। ऑटोमोबाइल जैसे कार हो गया, ट्रक्स हो गया, रेलवेज हो गया, they fall under this category. And जापान, जर्मनी, यूएसए एंड रशिया ये लीडिंग प्रोड्यूसर है। राइट, इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्रीज है वो आपकी कहाँ लोकेटेड है? भोपाल में, बेंगलुरु में, पिंजौर में और हरिद्वार में। राइट, वी हैव हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड, बेल, दैट इज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये दो एग्जाम्पल हैं आपके किसके? इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। राइट, hope you understood each and everything. Now our chapter has been completed. That's all for today. Thank you for learning with me. Keep enjoying.